A warm welcome to one and all. Today in this particular video session we are going to see how to create a Google form. So before going to start how to create Google form, first of all we will see what is exactly a Google form. It is a mechanism or method through which we are collecting the information from the user. Of course it is online. We can create an e-quiz, test paper, attendance, etc. Once the data has been collected, we will be able to analyze it using the various tools. And the most important thing, in order to create a Google form, you must have a Google account, or we can say that's a Gmail account. And whatever the information that user is going to feed up is going to be stored in your host Google Drive. So let's start with the session how to work with the Google form. So like I said, first of all you must have your Gmail account. So I am assuming that you already have it. Now click on the Google app over here. You will find your Google Drive. Since I already loaded over here, so I will directly click over here. It will show you all the files and folders that I have created already. So we will start the Google form by clicking on the new, and then in more we will select the Google form. As soon as you click on the Google form, it will show you the untitled form जिसका अभी तक हमने कोई नाम नहीं दिया है. So we will start giving a name to this by something like this. I am giving an untitled form name and naming it by the same name. Okay, no problem. Then if you want to give a form description, you can give it something like this. I already created all those things so that we will be able to save a time, nothing else. Form description. Now if you observe it, there are two things over here. First one is the question and second one is the response. Okay, so we are discussing about the question, and if you observe here, the link is showing edit. It means we are able to add a new questions, we are able to edit certain question. If you want to delete certain question, you can do. So all this thing is possible. Now how user is able, or how user is going to view this form. So for that purpose we will click on preview, the look that user is going to get. तो इस तरह से एक यूजर को इस तरह का स्क्रीन दिखेगा. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्यू फॉर्म. इसका मतलब ये यूजर का स्क्रीन है. तो जब हम उसको लिंक भेजेंगे तो यूजर को ये पार्ट दिखेगा. ओके, तो फिलहाल हम इसको क्लोज कर रहे हैं और हम फिर से वापस यहाँ पे आ रहे हैं. अब हम देखेंगे यहाँ पे इसको कस्टमाइज कैसे किया जा सकता है, मतलब एक अच्छा लुक कैसे दिया जा सकता है. तो फॉर दैट पर्पज इसके अंदर हमारे पास 4 ऑप्शंस है. हेडर, तो सबसे पहले मैं हेडर ले रहा हूँ. एक अच्छा सा हम एक इमेज यहाँ पे दे सकते हैं, कस्टमाइज इमेज या फिर प्री बिल्ड इमेज. तो सपोज हम यहाँ पे ले रहे हैं जो ऑलरेडी थीम्स अवेलेबल है, उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे. तो देखिए आपके हेडर पार्ट में आपको ये दिख रहा है इमेज. तो ये हो गया हमारा इनबिल्ट इमेज. ठीक है. सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, कस्टम इमेज ले सकते हैं. कस्टम इमेज मतलब वो इमेज जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, चाहे या तो पेंट ब्रश में बनाई हो या फिर किसी भी पेंट ब्रश ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर में जिसमें हमने इस तरह का बनाया होगा. तो फिलहाल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप एक अच्छी इमेज बना सकते हैं. तो इसको मैं थोड़ा प्रॉपर्ली सेट कर रहा हूँ और यहाँ पे डन बोल रहा हूँ. तो ये हो गया हेडर पार्ट. देन हम एक थीम को कलर दे सकते हैं. यहाँ पे इतने वेराइटीज ऑफ कलर दिए. फॉर एग्जांपल मैं इस तरह का दे रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ और कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐड कस्टम कलर ले सकता हूँ और जहाँ पे प्रॉपर्ली जो भी कलर मुझे देना है वो मैं दे सकता हूँ. फिर ऐड पे क्लिक कर रहे हैं. सिमिलरली हम उसका एक बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं. देन फॉन्ट स्टाइल, बाय डिफॉल्ट द फॉन्ट स्टाइल इज बेसिक, जो हमको दिख रहा है. हम इसको चेंज कर सकते हैं या तो डेकोरेटिव फॉर्म में या फिर फॉर्मल या फिर लास्ट है हमारा प्लेफुल. तो इस पर्टिकुलर गूगल फॉर्म के लिए मैं रख रहा हूँ प्लेफुल. तो दैट इज वॉट ऑल अबाउट द कस्टमाइजिंग द फॉर्म. देन अब हम इस कॉन्सेंट्रेट करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के ऊपर. बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन दिख रहे हैं. शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स एंड ड्रॉप डाउन. ये जो 5 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. अगले पार्ट में हम बाकी के क्वेश्चन देखेंगे. फिलहाल इस पार्ट में हम एक पार्ट पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ नेम. सबसे पहले हम एक्सेप्ट करें यूजर का नेम. तो हमारा ये क्वेश्चन
आंसर टाइप हो गया शॉर्ट आंसर का। देन हम एडिशनल क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर सपोज मुझे यहाँ पे उसका पेरेंट नेम भी लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डुप्लीकेट कर सकता हूँ। डुप्लीकेट का एडवांटेज ये रहेगा कि इस क्वेश्चन के लिए हमने जो भी सेटिंग की है वो अपने आप सेकंड इसके लिए भी हमको मिल जाएगा। मतलब हमको और एडिशनल फिर से कोई सेटिंग फिर से बार बार करने की कोई जरूरत नहीं। नो डाउट हमने यहाँ पे फिलहाल कोई सेटिंग नहीं की है। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ पेरेंट नेम, ठीक है। अब मुझे लगा कि सपोज ये क्वेश्चन नहीं चाहिए, मैं इसी में नया क्वेश्चन बना लेता हूँ फुल नेम, ताकि उसी में सब कुछ आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकता हूँ। ओके, देन एडिशनल क्वेश्चन ले रहे हैं हम, यहाँ पे ले रहे हैं सपोज एड्रेस, तो ये हो गया पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन। देन हम ले रहे हैं यहाँ पे डेसिग्नेशन। डेसिग्नेशन के अंदर हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक करके रखे हैं, तो मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। चारों को कॉपी यहाँ से फॉर्म में जा रहे हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर रहे हैं। मल्टीपल चॉइस लेके, मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे पेस्ट, तो हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे। बाद में फिर से एडिशनल एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ पे। अब हम देखेंगे चेक बॉक्स का क्वेश्चन, वाई यू विश टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर वेबिनार, आप ये वेबिनार क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ पे चेक बॉक्स, और ऑप्शंस रहेंगे हमारे ओके। तो ये हमने इतने सारे ऑप्शन दिए। तो ये हो गया हमारा पूरा बेसिक क्वेश्चंस के साथ हमारा एक फॉर्म तैयार है। अब हम इसको देखेंगे कि ये प्रीव्यू में कैसे दिख रहा है, मतलब यूजर को कैसे दिखेगा। तो देखिए फुल नेम फिलहाल टेम्परेरी में दे रहा हूँ, देन प्रोफेसर, यहाँ पे मैं व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ चेक बॉक्स इज दैट यू कैन सिलेक्ट वन और मोर देन वन ऑप्शन और नन, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करना ये भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप डेसिग्नेशन लेते हैं तो आप मैक्सिमम एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पे सबमिट फॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से वापस आ रहा हूँ, इसको क्लोज कर रहा हूँ। नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पे एडिंग टाइटल। सपोज ये दो पार्ट को मुझे डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट पार्टिसिपेंट्स है और ये हमको वेबिनार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। तो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं इस दो पार्ट को। तो हम यहाँ पे एक ऐड टाइटल से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ऐड टाइटल, एक मिनट कहीं और गया वो, मैं इसको यहाँ पे चाहता हूँ, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे क्विज। ओके, तो इस तरह से हम देखिए, अब हम प्रीव्यू में देखते हैं तो ये कैसे दिखेगा। यहाँ पे क्विज दिख रहा है। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस, अगर हम यहाँ पे कोई अच्छी सी इमेज दे सकते थे तो शायद उसका लुक अच्छा दिख सकता था। तो वो कैसे किया जा सकता है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे इमेज कर रहा हूँ, ऐड इमेज। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ से आप इमेज को अपलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं पीसी में जो ऑलरेडी स्टोर्ड है टेक्निकल नाम की एक इमेज है, मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसको इमेज यहाँ पे लोड कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट ये सेंटर लेफ्ट अलाइनमेंट आता है यहाँ, तो आप इसको सेंटर कर सकते हैं जैसे चाहिए वैसे। और फिर यहाँ पे मैं फिर से दे रहा हूँ क्विज। अब मुझे ये सपोज नहीं चाहिए तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि टाइटल कैसे ऐड करने का, इमेज कैसे ऐड करने का। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि एंटर कैसे किया जाता है, डेटा की एंट्री कैसी होती है और ये डेटा कहाँ से होता है, मतलब जब यूजर रेस्पॉन्स करता है तो डेटा कहाँ से होता है। ओके, तो मैं फॉर एग्जांपल प्रीव्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए फुल नेम, एड्रेस, डेसिग्नेशन हमने यहाँ पे क्लिक के लिए दिया। और ये नाउ मैंने एक भी ऑप्शन अगर मैंने क्लिक न करते हुए मैं अगर डायरेक्ट सबमिट करता हूँ तो ये एक्सेप्ट कर रहा है क्या, चलो देखते हैं। बिल्कुल ये एक्सेप्ट कर रहा है, योर रेस्पॉन्सेस हैव बीन रिकॉर्डेड, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए देखो यहाँ पे रेस्पॉन्सेस में एक रिकॉर्ड हमारा जा चुका है। अगर हम देख भी सकते हैं कि वो क्या हुआ रेस्पॉन्सेस, तो ऑब्वियसली देखो पूरा ब्लैंक है ये। तो फिर से हम क्वेश्चन में आ रहे हैं, एक यहाँ पे एडिशनल टाइटल आया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। देन अब मुझे कंपलसरी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वायर फील्ड पे कंपलसरी डेटा,
मतलब जहाँ पे हमको लग रहा है कि इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करनी है कंपल्सरीली यूज़र से, तो हम उसको कंपल्शन कर रहे हैं यूज़र को कि आपको ये एंट्री करनी ही पड़ेगी। मैं इसके लिए कोई भी कंपल्सरी नहीं करना चाहता हूँ, तो नो प्रॉब्लम। देखते हैं अभी हम किस तरह से ये जा रहा है प्रीव्यू। फिर से देखिए यहाँ पे स्टार आया। स्टार का मतलब क्या है कि ये फील्ड आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आपको एंट्री करनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एंट्री की यहाँ पे अखिल, एड्रेस 18 सेकंड फ्लोर। पैराग्राफ देने की वजह से हम यहाँ पे जितने चाहे उतने लाइन ऐड कर सकते हैं। डेसिग्नेशन हमने सिलेक्ट किए, फॉर एग्जाम्पल CHB टीचर, देन कौन सी चीज चाहिए एक्सप्लोर कर रहा है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन सबमिट की, तो रेस्पॉन्सेज क्या हुआ हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। फिर से हम देखते हैं कि टोटल हमारे रेस्पॉन्सेज कितने हुए यहाँ पे 2 का ना। इस तरह से यूजर से हम क्या कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं ना। अज्यूम करते हैं कि 2-4 होंगे तो ठीक है, लेकिन अज्यूम करते हैं कि 100-150 अगर हो गए तो इस तरह से देखना हमारे लिए बहुत तकलीफ वाला काम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गूगल हमको एक फीचर प्रोवाइड करता है क्रिएट स्प्रेडशीट, मतलब ये जो भी इंफॉर्मेशन हम स्प्रेडशीट में एंट्री करवा सकते हैं इसकी। तो हमने यहाँ पे क्लिक किए और क्रिएट बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे गूगल ने हमारे लिए क्या बना के दिया स्प्रेडशीट में। तो देखिए हमारा पूरा इंफॉर्मेशन स्प्रेडशीट में इस तरह से स्टोर हो रहा है। हमने एक्सेप्ट किए थे फुल नेम, एड्रेस, डेस्टिनेशन और ये, लेकिन हमने टाइम स्टैम्प ऐसा कुछ एक्सेप्ट किए थे क्या? नो। तो इट इज द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय द गूगल एज सून एज द यूजर एंटर द डेटा, it maintain the date and as well as the time. Okay, so that is one of the most important feature that has been provided by the Google automatically while entering a data. So फिर से हम आ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में। तो आज के सेशन में हमने क्या देखे, एक छोटा सा डिफरेंस जो मुझे आपको यहाँ पे बताना है, मल्टीपल चॉइस और ड्रॉप डाउन में डिफरेंस क्या है। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, तो ठीक है हम मल्टीपल चॉइस ले सकते हैं, लेकिन अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हमारे 10-12 ऑप्शंस है, तो क्या किया जा सकता है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन। तो देखिए ये चीज ड्रॉप डाउन में जब हम रन करते हैं तो कैसे दिखता है ये। तो ये आ गया यहाँ पे ड्रॉप डाउन में, हमने क्या किया, मतलब ऑटोमेटिकली एक्सपांड होता है। तो दैट इज अ वर्किंग विद द ड्रॉप डाउन। तो वही ओनली डिफरेंस है एक मल्टीपल चॉइस और ड्रॉप डाउन में। जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं तब हमने क्या सिलेक्ट करना चाहिए, ड्रॉप डाउन। और एक फीचर जो मैं आपको यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये कि शफल द ऑप्शन ऑर्डर। हम यहाँ पे ऑर्डर को शफल कर सकते हैं। नो डाउट यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, जब आप प्ले करेंगे मतलब प्रीव्यू करेंगे तब आपको ये शफलिंग दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे डेसिग्नेशन में हमने चेंज किए थे, तो क्या रहा यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया। हमने एसोसिएट पहले दिए थे, असिस्टेंट बाद में दिए थे। तो इस तरह की शफलिंग जब हम क्विज बनाते हैं तो उस समय ये बहुत यूजफुल है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन के लिए इतना ही। तो आज हमने क्या देखे, हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म, नाम कैसे दिया जा सकता है, प्रीव्यू कैसे दिया जा सकता है, कस्टमाइजिंग थीम कैसे कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमने बेसिक दिए, उसमें शफलिंग देखे हमने, एडिंग क्वेश्चन, डुप्लीकेट क्वेश्चन, डिलीट भी देखे, एडिंग इमोजी कैसे करना भी देखेंगे हम, रेस्पॉन्स फॉर्म कैसे करते हैं, स्प्रेडशीट कैसे कर सकते हैं, और यूजर को कंपलसरी डेटा एंट्री करने कैसे लगा सकते हैं। ओके, तो हम जा रहे हैं फिर से इमोजीज में। 1 मिनट के लिए मैं सिंपली यहाँ पे डेसिग्नेशन पे जा रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है इमोजी। तो आप जो भी आपको इमोजी पसंद आ रहा है उस तरह का आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्ट किया, तो इस तरह से आप चाहे तो एक इमोजीज देके अपने फॉर्म को एक बेहतर लुक दे सकते हैं। तो आज के लिए इस सेशन के लिए इतना ही। कल के सेशन में मतलब अगले सेशन में अगले पार्ट में हम देखेंगे एडिशनल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्विज कैसे बनाते हैं और एड ऑन किस तरह से ऐड किया जा सकता है। तो थैंक यू